Namaste everyone. I am Neetu Somani, your host and moderator for today. I am a yoga instructor and yoga therapist from Singapore. It is a great pleasure and honor to be amongst such great dignitaries and speakers today. आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. As you all know, 21st June is the International Day of Yoga, and we have started the celebrations already. YouthNews.online, in association with National Youth Foundation, Indian Yoga Association, and Parmarth Niketan Ashram have organized International Yoga e-conclave, and today is the second day. We have some renowned and eminent speakers from all over the world to enlighten us. Yesterday was the first day of the conclave, and we had the privilege to listen to many spiritual gurus and yoga masters from all over the world sharing their wisdom and knowledge with us. It is my pleasure to extend a cheerful welcome to all of you for the second day of International Yoga e-conclave 2021. I would like to thank the sponsors of the conclave, who are City Montessori School, Vishwa and Vyasa Canada, the Art of Living Foundation, Hum Purna Yoga Institute, Sarva Yoga International, Resonance the Yoga Studio, International Naturopathy Organization, SBPASS, World Yoga Federation, Yoga Alliance International, Sunmark Event Expert, Adhyatma Yoga Kendra, Soham Department of Yoga and Naturopathy, MJ College, Jalgaon, Anand Ashram Pondicherry, Dr. Nutan Ayurveda and Garbh Sanskar Academy, Manav Dharam Argentinian Hindu Parishad. Thank you all. The reach and spread of yoga today spans across continents. There are communities of yoga practitioners in almost every country in the world today. In order to benefit fully from yoga, to understand yoga in its entirety, we must reflect on who is a yogi. There is a beautiful shlok in Bhagavad Gita where Lord Krishna says, Yasmano dvijate loko, lokano dvijate chayaha, harshamarsh bhayo dvegair, muktoya sachme priyaha. By whom the world is not disturbed, and he who is not disturbed by the world, who is free from joy, impatience, fear, and distress, he is also dear to me. As you all know, we are going through extraordinary times with the pandemic still quite prevalent. As the world battles the COVID-19 pandemic on a war footing, India's traditional system of yoga has been established as a means to boost immunity, improve overall health and well-being. On 20th March 2020, Director General of the WHO also suggested that people could do yoga to maintain their physical and mental health. This will not help you only in the long term, it will also help you to fight COVID-19 if you get it, he suggested. To welcome you all on behalf of YouthNews.online, Parmarth Niketan Ashram and Indian Yoga Association in the International Yoga e-conclave 2021. आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, महान विभूतियां हैं, जिनसे वैसे रूबरू हो पाना शायद मुश्किल होता, लेकिन कोरोना ने काफी सब कुछ आसान कर दिया और शायद हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ऐसे समय में हैं जबकि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और ये सही जरूरत है, ये कार्यक्रम इस समय की जरूरत बन चुका है। ऐसे कार्यक्रम में यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का, यहाँ पर आए हुए सभी महान विभूतियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। This event is organized by YouthNews.online in association with Indian Yoga Association, Parmarth Niketan Ashram and Indian Yoga and National Youth Foundation.
This event is supported by City Montessori School, Vishwa and Vyasa Canada, the Art of Living Foundation, Hanspurna Yoga Institute, Sarva Yoga International, Resonance the Yoga Institute, International Naturopathy Organization, SB Pass, World Yoga Federation, Yoga Alliance International, Sanmarg Event International, Adhyatma Yoga Kendra, Soham Department of Yoga and Naturopathy, MJ College, Jalgaon, Ananda Ashram, Pondicherry, Dr. Nutan Ayurveda at Garbh Sanskar Academy, Manav Dharma, Argentina, Hindu Parishad. We'd like to welcome everyone on board. We would like to welcome Mr. Ravi Tripathi, Indian Idol finalist, and who represented India internationally in Asian Games. We would like to welcome chief guest, Dr. H.R. Nagendra Guruji. He has joined us. We welcome you all on behalf of our entire team and on the behalf of the supporting organizations. We would like to welcome Ms. Bhanumati Narasimhan, the chairperson, Women Empowerment and Child Care Programs from Art of Living Foundation. We would like to welcome Dr. Jagdish Gandhi, founder, CMS Group of Institutions. We would like to welcome Dr. Ananda Balyogi Bhavnani ji, Chairman ICYER and Yoganjali Natyalam. We would like to welcome Subodh Tiwari ji, Vice President, Indian Yoga Association and Founder Director, Kaivalya Dham. We would like to welcome Sarita P. Naik, the founder of UGLC and the faculty of AYG Academy. We would like to welcome Dr. Ishwar K. Baswareddy, Director, Murarji Desai National Institute of Yoga, Dr. Vishwas Manlik ji, founder, Yoga Vidya Dham, Swamini Durga Saraswati ji, the faculty, Peter Rosina, founder, Project Peace Lights, Aparna Das, President, ISKCON Temple, Dr. Satyendra Kumar Mishra, faculty member, Faculty of Yoga and Alternative Medicine, Lucknow University. We would like to welcome you all on board for making this event a memorable event. And एक बार पुनः यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी संस्था youthnews.online की तरफ से, परमार्थ निकेतन आश्रम की तरफ से, नेशनल यूथ फाउंडेशन की तरफ से और इंडियन योगा एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने होस्ट से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी to the next guest. I would like to invite Dr. Satyendra Mishra. He is the faculty of Yoga Alternative Medicine in Lucknow University. I welcome you, Dr. Satyendra Mishra. आज अपनी बात शुरू करने से पहले आपके लिए दो शब्द कहना बहुत आवश्यक बन जाता है। सबसे पहले मैं यूथ न्यूज़ ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस पुनीत अवसर पर इस इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन पे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया और अपने अनुभव को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया। आप सबका धन्यवाद और सभी को नमस्कार, हरिओम। आज जो विषय हमारे पास है वो है योग एंड इम्यूनिटी। ये थोड़ा समसामयिक है, फिलॉसफी से थोड़ा हटके है, अप्लाइड पोर्शन पर है। इसमें दो विषय आ रहे हैं, योग एंड इम्यूनिटी। योग पे काफी विस्तृत चर्चा काफी विद्वानों ने करी है। ये हम भी योग का अप्लाइड वर्जन आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इम्यूनिटी जान लेते हैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? किसी भी डिजीज के से लड़ने की जो ताकत है, हमारी खुदाई ताकत है, ईश्वर की दी हुई क्षमता है, वही इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी वास्तव में ह्यूमन बीइंग को गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, जो कि तीन रूपों में, फिजिकल बैरियर्स के रूप में, ह्यूमरल इम्यूनिटी के रूप में और सेल्यूलर इम्यूनिटी के रूप में हमें मिला हुआ है। फिजिकल बैरियर्स के रूप में हम सब जानते हैं, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, ओरिफेशियल मसल्स, जो संकुचनी पेशी लगी हुई विभिन्न ओपनिंग्स पे, एंड हेयर्स हैं जो अनडिजायर्ड पार्टिकल्स को हमारे शरीर में इंटर होने से रोकते हैं। आप जानते हैं नेजल ओपनिंग पे हमारे हेयर्स हैं, ये एयर फिल्टर करते हैं। ओरिफिशियल मसल्स हमारी सारी ओपनिंग्स पे लगी हुई हैं, जो अनवांटेड चीज़ों को अंदर जाने से रोकती हैं। माउथ कैविटी के नीचे ईसोफेगस के बाद जब भोजन स्टमक पहुंचता है तो वहाँ भी ओरिफिशियल मसल्स हैं। स्टमक से ड्यूडेनम के जंक्शन पे भी मसल्स ऐसा हर एक पार्ट में लगी हुई है, जो एक चेक पॉइंट है। हर पॉइंट पर चेक किया जाता है कि जो चीज़ अंदर जा रही है
वो जाने लायक है कि नहीं। तो फिजिकल बैरियर्स के रूप में एक ये बात हो गई। दूसरी ह्यूमरल इम्यूनिटी। हमारे रक्त में बहुत सारी सुरक्षा प्रहरी लगातार घूमते रहते हैं, जिनको हम WBC के नाम से जानते हैं, जैसे लिम्फोसाइट, पॉलीमॉर्फ्स यानी न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एटसेट्रा। ये अपनी फैगोसिटिक एक्टिविटी के द्वारा कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस मॉलिक्यूल आता है हमारे शरीर में, जो नेजल कैविटी या ओरल कैविटी, दो ही एंट्री रूट है, इनसे होता हुआ अगर हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है तो ब्लड के ये दस्ती दल जो है हमारा गश्त करने वाला, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इनको फाइगोसाइट कर लेता है। या कुछ न्यूट्रलाइजिंग पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कह सकते हैं। इस तरह के पार्टिकल इन नेगेटिव एलिमेंट्स को वहां पर न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे अपनी कोई हार्मफुल एक्टिविटी ना उत्पन्न कर पाए। तीसरा जो लेवल है इम्यूनिटी का, वो है सेल्यूलर इम्यूनिटी। अब अगर कोई पैथोजन हमारी सेल के अंदर पहुंच गया है तो उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए नेचर ने हमें व्यवस्था दी है। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दो तरह की लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी एजेंट यानी जो अंतिम प्रोडक्ट है इम्यूनिटी का, एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, और वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के द्वारा आए हुए आतताई को, आए हुए दुश्मन को या पैथोजेनिक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी की बात हुई। अब बात करते हैं कि इन तीनों स्तरों पर हम योग से कैसे प्लस कर सकते। वास्तव में उपरोक्त तीनों स्तरों पर प्राकृतिक प्रदत्त व्यवस्थाओं को बनाए रखने से और सुदृढ़ रखने में प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने में ही मदद मिलती है। ये प्राकृतिक जीवन शैली यानी प्रकृति के अनुरूप जीने का रहस्य। जब हम योग को अपनाते हैं अपनी जीवन शैली में, तो हमारी जीवन शैली स्वतः प्राकृतिक हो जाती है। अगर सुबह उठ के योग करना है तो रात में समय से सोना पड़ेगा। योग करना है, योग में सही फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में रहे तो सही तरह से भोजन करना, ऑटोमेटिकली वो चीजें व्यवस्थित होती चली जाती हैं। यानी योग अपनाने से, जैसा भी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, योग का मतलब केवल फिजिकल व्यायाम नहीं है, वास्तव में फिजिकल व्यायाम नहीं, लेकिन योग अभ्यास करने के साथ हमारी मेंटेलिटी भी बदलती है, क्योंकि योग ही अकेली एक्सरसाइज पूरी दुनिया की है जो सोमैटोसाइकिक अप्रोच रखती है, शरीर से मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने की व्यवस्था बताती है। योग का अभ्यास से हम शरीर के द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, शरीर के द्वारा मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो योग के रास्ते पर आगे बढ़ने मात्र से ही हमारी बहुत सारी प्रवृत्तियां परिवर्तित होने लगती हैं, दिनचर्या ठीक होने लगती है और लाइफ स्टाइल प्राकृतिक होने लगती है। इसका एग्जैक्ट सही सटीक एग्जाम्पल आपने अभी देखा होगा। पूरे विश्व में कोरोना काल के दौरान आपने देखा कि अनेकों लोगों को इन तकलीफों से झेलना पड़ा। जो योग के प्रैक्टिशनर थे, जिनके व्यवहार में योग शामिल था, वो या तो कोरोना से अप्रभावित रहे, या अगर प्रभावित हुए तो प्रभावित होने बड़ी सरलता से उसको जीत लिया उन्होंने, उससे बाहर निकल गए और शरीर पर कोई ज्यादा कष्ट नहीं आया। अब अगर हम देखते हैं इन सारी इम्यूनिटीज को प्लस करने का योग के पास क्या उपाय है, योग के अभ्यास से किस प्रकार प्लस हो जाती है, तो इसके लिए हमें योग के क्रमिक अभ्यास की तरफ जाना पड़ेगा। योग में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले योगाभ्यासी को शोधन क्रियाओं के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिसमें शोधन क्रियाओं में नेति, नौली, बस्ती, धौती, कपालभाति, त्राटक, ये 6 क्रियाएं होती हैं। इन 6 क्रियाओं के अभ्यास से बंदे को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर जमा हुए मल को निकालते हैं। मल का अभिप्राय यहाँ पर किसी एक वस्तु से नहीं है, जो मन को मलिन करे वो मल है, ये परिभाषा है मल की। हमारे वो थॉट्स भी हो सकते हैं मल के रूप में, हमारी एक्स्ट्रा फैट भी हो सकती है और तमाम सारे टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। तो इन 7 कर्मों के माध्यम से सबसे पहले हम अपने शरीर को विषमुक्त करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, और डिटॉक्सिफाई करने से हमारा जो इम्यून रिस्पांस है फोकस्ड हो जाता है और किसी भी सिचुएशन के अगेंस्ट भरपूर क्षमता से अपना काम करता है। दूसरे चरण पर चलते हैं। दूसरा चरण हमारा सूक्ष्म क्रियाएं एवं स्थूल क्रियाओं का अभ्यास। सूक्ष्म क्रियाएं और स्थूल क्रियाओं के अभ्यास के द्वारा हम लोग शरीर के छोटी छोटी ज्वाइंट्स को, छोटी छोटी मसल्स को, छोटी छोटी लिगामेंट्स को
और शरीर के सूक्ष्म यंत्रों को, जिनको हम देख नहीं सकते, लाइक बंध मुद्रा में प्रयुक्त होने वाले यंत्र, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको सजग करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। अगर हम फिजिकल लेवल पर देखें तो सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से हमारे शरीर के डिजिटल एंड तक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में फ्रेश ब्लड की अप्रोच बढ़ती है, अच्छी मात्रा में उचित प्रकार से शुद्ध रक्त पहुंचता है और हमारी प्रत्येक कोशिका उन्मुक्त भाव से स्वतंत्रता पूर्वक अपनी स्थिति को मेंटेन करती है, अपनी कार्य को संपादित करती है। और अगर हमारी कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं निर्विघ्न भाव से, तो इम्यूनिटी स्वतः बढ़ेगी। तीसरे चरण पे आते हैं। तीसरे चरण पे हम लोग करते हैं योग अभ्यास। विभिन्न प्रकार के योग अभ्यास का अभ्यास करने से सबसे बड़ी चीज जो हमें मिलती है वो है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, जो कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, उनमें हार्मोनाइजेशन एस्टेब्लिश होता है। ब्रेन और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में हार्मोनी एस्टेब्लिश होती है। इस एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी की वजह से हर एक ऑर्गन अपनी पूरी क्षमता में पूरा काम करता है। फलस्वरूप एंटीबॉडी बनाने के लिए कच्चा माल यानी लीवर, जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बना के देता है, और हमारी जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम उससे इम्यूनिटी में सहायक एंटीबॉडी बनाता है, वो सारी प्रक्रियाएं स्वतंत्रतापूर्वक चलती रहेंगी। हमारे निस्कारक अंग निस्कारण का काम करेंगे, हमारे पाचक अंग पाचन का काम करेंगे। ओवरऑल जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, इम्यूनिटी प्लस होगी और इम्यूनिटी फोकस होगी, एक जगह पर होगी और किसी भी आतताई से लड़ने में सफल होगी। इसके बाद इसके आगे चलते हैं तो अगला चरण आता है प्राणायाम। प्राणायाम इस शरीर की बात हो गई, अब मन की बात है। मन को कैसे शुद्ध करें, मन को कैसे प्यूरिफाई करें, इसके लिए प्राणायाम है। मानसिक चिंतन को सुदृढ़ करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए जो विधि है वो प्राणायाम है। प्राणायाम से हमारी वाइटलिटी बढ़ती है, चिंतन शुद्ध होता है। इसके बाद बंध मुद्राएं, धारणा और ध्यान जैसी स्थितियां जो योगाभ्यास में सीखी जाती हैं, कराई जाती हैं, इनके अभ्यास से हमारे इम्यून रिस्पांस में इंटैक्टनेस बढ़ती है। आप जानते हैं धारणा यानी कंसंट्रेशन, ध्यान यानी मेडिटेशन, जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपके अंदर द्वंद्व नहीं होते, आपके अंदर डुअलिटी नहीं होती, परफेक्शन होता है। जो सोचते हैं उस पर अडिग रहते हैं, और आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट के ना रहने पर आपकी इम्यूनिटी सदैव प्लस होती है, और उस प्लस इम्यूनिटी से आप सदैव दुनिया को जीतते हैं, दुनिया की सारी चीजों को प्राप्त करते हैं। अब योग के इन दृष्टांतों को देखने के बाद पता लगता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी सही है तो चाहे जिस तरह का पैथोजन हो, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हो, उसको हमारे शरीर में पहुंचते ही हमारी शरीर पूरी तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है और वो हमको प्रभावित नहीं कर पाता। अतः ये कहा जा सकता है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर के बारे में भारतीय व्यवस्था में बहुत अच्छी तरह से एक बात कही गई है। शरीर जो जीवन है, ये शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का समवाय है। समवाय मीन्स इनसेपरेबल, अनसेपरेबल रिलेशंस। ये इन चारों चीजों को अलग कर देने पे जीवन नहीं बचेगा या जीवन की क्वालिटी नहीं रह जाएगी। तो इस समवायीकरण को प्राप्त करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ योग है, हार्मोनी है। योग का अभ्यास करके हम इन चारों चरणों को समृद्ध करते हैं। चारों चरणों को समृद्ध करने से हमारा शरीर, हमारा जीवन जो सुखमय और दुखमय आयु के रूप में विभाजित है, उसमें दुखमय अंश समाप्त हो जाता है, केवल सुखमय अंश रह जाता है और सुखमय आयु हमको प्राप्त होती है। इन बातों के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ के चारों आधारों के बारे में सोचना पड़ेगा। स्वस्थ के 4 पिलर्स जो हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। कोई भी ऐसी टेक्निक पूरे विश्व में नहीं विकसित हुई है इन चारों पे एक साथ काम करे। Thank you. कोई फिजिकल डायमेंशन पे काम करती है, कोई मेंटल पे, कोई स्पिरिचुअल पे, और आपका योग एक ऐसा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ चारों को समान रूप से पोषित करता है और अपनी जिंदगी में समरसता लाने के लिए ये पर्याप्त है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार।